एंड देन इफ दे हैव अ बिलीव कि किसिंग से प्रेगनेंसी होती है, कहते हैं अपनी प्रेगनेंसी किसिंग से नहीं होती है, कि बच्चे नीचे से निकलते हैं, लेकिन नीचे ऐसे नीचे क्या है, नीचे से तो एक होल है जहाँ से हम पी करते हैं, कि जैसे जो स्विम सूट के अंदर पार्ट्स होते हैं वो हमारे प्राइवेट पार्ट्स हैं। गर्ल्स के लिए वल्वा एंड बटक प्राइवेट होते हैं एंड चेस्ट एरिया भी प्राइवेट होती है। आई मीन उनको करेक्ट टर्म्स बताओ आप कि दिस इज योर पीनस, दिस इज योर वल्वा, जस्ट एज यू टीच देम दिस इज योर नोज और दिस इज योर आईज। एंड आई थिंक एक चीज मैं पेरेंट्स को बोलना चाहूंगी कि सेक्स एड ना इंक्रीमेंटल लर्निंग होता है। अगर हम सारा टाइम बच्चों को फोर्स करेंगे हर चीज के लिए, देन उन्हें ये मैसेज मिलता है क्योंकि ना की कोई वैल्यू ही नहीं है। बॉडी हेयर होएगा, वॉइस चेंज होंगे, इरेक्शंस होंगे। मुझे ये भी बात करें कि गर्ल्स को पीरियड्स होते हैं, ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है, हाउ टू बी सपोर्टिव, हाउ टू बी रिस्पेक्टफुल। Hello, everyone. Welcome to the Open Minds podcast with Arpita, where we break the silence, question the norms, and open conversation that truly matters. So, today we are stepping into a topic that's often swept under the carpet in our homes, schools, and society: sex education, consent, body awareness, and emotional safety for children, from toddlers to teens. So, I know for many of us parents, caregivers, and even educators, these conversations can feel awkward, overwhelming, or even unnecessary. But the truth is, if we don't talk to our kids about their bodies, consent, and safety, someone else or the internet will. That's why I'm so excited about today's guest, the incredible minds behind Untaboo, a platform that's on a mission to make sexual health education inclusive, accessible, and most importantly, free of shame. Together, we are diving into a lot of questions like when and how should you start talking to your child about their body? How can we teach consent in ways that are age appropriate? What can schools and parents do together to create safer, more informed environment for kids? So let's get comfortable with the uncomfortable because it's time to untaboo the talk. Let's welcome our today's guest. Hi Anju, a very warm welcome to Open Minds podcast with Arpita. Hi, thank you Arpita. Such a pleasure to be here. And thank you ये टॉपिक को आपके पॉडकास्ट के लिए चूज करने के लिए. सेक्स एजुकेशन इज सच एन इम्पोर्टेंट टॉपिक, सो थैंक यू फॉर दैट. So when I've seen your page Untaboo, I was like, I really, really loved the work you do. And Untaboo has been a powerful voice in making sex education accessible and stigma-free. So what was the Untaboo movement that made you start this movement? वेल अर्पिता, आई कांट से कि कोई एक मोमेंट था जिसने अनटैबू को स्टार्ट किया. आई थिंक देयर वर स्मॉल मोमेंट्स, सेवरल मोमेंट्स across over the years since I was growing up. People don't believe me when I say this. My friends laugh at me कि ऐसा थोड़ी होता है. But actually, I was about 22 years old when I got to know where babies come out from. एक मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, वो प्रेग्नेंट थी एंड उसकी प्रेगनेंसी बुक थी which I was going through, and उसमें I saw the images and I saw that the baby comes out from the vagina. And I was so shocked. I said, oh, I mean, I knew babies came out from down there. हम साइंस स्टूडेंट नहीं थे, पर इतना तो सुना था कि बच्चे नीचे से निकलते हैं, लेकिन नीचे ऐसे नीचे क्या है, नीचे से तो एक होल है जहाँ से हम पी करते हैं और दूसरा होल है जहाँ से पूप करते हैं. तो पी वाला होल तो छोटा होएगा, तो बच्चे आई एम श्योर एनस से निकलते होंगे जहाँ से हम पूप करते हैं. दैट्स व्हाट आई थॉट एंड बिलीव. And when I got to know, I was so shocked. My friend was laughing at me also. And I was just so upset with my mom कि ये तो basic biology है, क्यों नहीं बताया. Then of course there were moments when I got married and learned new things about intimacy. इतनी चीजें होती है which you feel somebody had told you. And then I had a baby, and when my son was, I don't know, 5-6 साल का था, जो उसने questions पूछने चालू किए, जो I think typically हर बच्चा पूछता है, right? मैं कैसे पैदा हुआ या बच्चे कैसे पैदा होते हैं, और इस तरह के बहुत सारे सवाल. And I knew I had to do something. I had to break this chain of silence. I realized that we are not protecting our kids by staying quiet. We are abandoning them. एक छोटी सी चीज होती है कि बच्चे को आप रोड भी क्रॉस करवाना है तो उसे सिखाते हो, लेफ्ट देखो, राइट देखो, बिफोर वी लेट देम
अकेले गो ऑन द रोड। ये तो आप बच्चे को सोसाइटी में बाहर भेज रहे हो विदाउट एनी टॉक ऑन प्यूबर्टी, सेक्स एजुकेशन, सेफ्टी। ये तो आप अपने बच्चे को एकदम अबैंडन ही कर दे रहे हो। सो आई सेड कि नहीं, इसके बारे में तो बात करनी चाहिए, किसी को तो करनी चाहिए, एंड आई डिसाइडेड टू टेक द बेटन, एंड yes, that was the start of Untaboo. And great. I mean, I'm sure you are the inspiration of many, including me as well, because I really, really love the work you do. So in India, sex is still often whispered about or not talked about at all. So what do you think, and why do you think like silence is so dangerous? Why do you think? तो आई थिंक ये सालों का कंडीशनिंग है, राइट? क्योंकि हमसे हमारे पेरेंट्स ने बात नहीं की, उनके पेरेंट्स से बात नहीं की, तो वो साइलेंस हैज कंटिन्यूड। एंड हमें ऑलवेज कहा जाता था कि अच्छे बच्चे या अच्छे बच्चियां इस तरह की बातें नहीं करते हैं। तो वो कंडीशनिंग इतना स्ट्रांग है, इतना शेम एसोसिएटेड है ये बातों से, एंड साइलेंस क्रिएट शेम। जब हम विस्पर करते हैं बॉडीज के बारे में, प्यूबर्टी के बारे में, पीरियड्स के बारे में, सेक्स के बारे में, तो बच्चों को ये मैसेज मिलता है कि इसमें देयर इज समथिंग डर्टी अबाउट दिस। सो दे ग्रो अप ashamed of their own bodies and their own processes which happen in their body. And ये जो साइलेंस क्रिएट होता है कि किसी ने बात ही नहीं कर रही है, if we parents don't fill that space with facts, someone else will fill it with fiction. Your kid will learn about sex. हमारे पेरेंट्स ने हमसे बात नहीं की, we also learned about sex, right? उनके पेरेंट्स ने उनसे बात नहीं की, they also learned about sex. लेकिन the question is कि कहाँ से सीखा? हमारे टाइम पे शायद किसी फ्रेंड से या कजिन से सीखा होगा, पर आजकल बहुत डेंजरस जमाना है, राइट? इंटरनेट इज ओपन टू देम एंड दे विल लर्न इट फ्रॉम देयर, एंड फिर हमें पता नहीं कि वो किस तरह का इंफॉर्मेशन उसे मिलता है एंड किस तरह का बिहेवियर होता है उसके कारण। बच्चे अलग अलग चीज की बातें मुझसे कहते हैं कि किसी ने कहा कि मैम सेक्स होता है जब आप गर्ल्स को उनके remove their clothes, tie them and hit them. अब imagine a child is growing up with this belief that this is what sex is. Obviously उसका behavior, attitude बहुत अलग होएगा. So ये शेम की जो साइकिल है ना, जो चली आ रही है, साइलेंस की साइकिल और शेम की साइकिल, ये कंटिन्यू करेगी, हमें इसे तोड़ना है। So if we don't talk, we are not just failing our children, we are also failing our grandchildren and generations to come. We have to break this cycle of silence. Yeah, right. So also age appropriate sex education is very, very important, because we cannot tell a 5-year-old about everything. We should tell them accordingly, right? So right. Like, what does it truly mean, and how early is too early to start about sex educating a child? It's never too early for sex education. जब आप बच्चे को private parts के बारे में बताते हो, and that can start as early as the day they talk. I mean, उनको correct terms बताओ आप कि this is your penis, this is your vulva, just as you teach them this is your nose or this is your eyes. उनको क्यों हम ये छुपाते हैं? वो क्यूट से पेट नेम्स रखते हैं कि ये आपका नुन्नू है या पीपी है या सुसु एरिया है। वो करने से हम उन्हें बल्कि मैसेज पॉइंट आउट करते हैं कि ये वाले जो बॉडी पार्ट्स है ना, कुछ अलग है या कुछ शेमफुल है। तो टीच देम द राइट नेम्स फ्रॉम डे वन। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि 4 साल के बच्चे भी आजकल पूछते हैं where do babies come from, right? So this is a time to answer them where do babies come from. Remember कि उनको हम ये उन्हें पूरा ज्ञान नहीं देना है, पूरा बायोलॉजिकल लेसन नहीं देना है हमको. It's just telling them that babies grow in a special place in a mom's tummy called the womb. That's it. A child will accept that very comfortably. Kids ask questions when they are ready for answers. So trust their curiosity.
A 3-year-old asking about babies is normal. 10-year-old पूछते हैं फिर इसके बारे में, आजकल सेक्स के बारे में भी. And remember that is normal because आजकल सब चीज जल्दी हो रही है. And I think एक चीज मैं पेरेंट्स को बोलना चाहूंगी कि सेक्स एड ना इंक्रीमेंटल लर्निंग होता है. कि जैसे आप बच्चे को जूनियर केजी में डालते हो तो उन्हें ऐसे लिखना नहीं सिखाते हैं, शुरुआत करते हैं ABCD से, राइट? सेक्स एड भी वैसा ही है. इट स्टार्ट्स विद लिटिल इंफॉर्मेशन एंड देन यू कीप बिल्डिंग ऑन दैट फाउंडेशन जो आपने क्रिएट किया है. आप बच्चे को लेके स्विमिंग पूल में डीप एंड पे नहीं फेंक देते हो, शैलो में ले जाके धीरे धीरे सिखाते हो. सेक्स एड वैसे ही है. पर अगर बच्चे ने क्वेश्चन नहीं पूछा देन इट्स इम्पोर्टेंट दैट यू ओपन द कॉन्वर्सेशन. फिर आप साइलेंट मत रहिए, फिर आपको कॉन्वर्सेशन चालू करना बहुत जरूरी है. If I talk about toddlers and early childhood, which is like from between 2 to 6 years old, so what are some Right. simple ways parents can introduce the concept of body autonomy and private part to toddlers without shame or fear? I think start by giving them autonomy of their body. इसका मतलब है कि their body belongs to them. ये उन्हें मैसेज देना बहुत जरूरी है कि this is your body, you're the boss of it. Make them feel powerful and not scared. Teach them about body parts like you would teach them about nose and toes or elbows, जैसे मैंने पहले कहा. Tell them these are your private parts and only जो trusted adults हैं वो इन private parts को टच कर सकते हैं. अगर they want to help you इन्हें साफ रखने के लिए या डॉक्टर को अगर चेक करना है, only then anybody can touch your private parts. Use real words, like I said, penis and vulva. They are not bad words, they are just body parts. When you give them nicknames, वो बच्चों को मैसेज मिलता है, like I was saying earlier also, कि there's something shameful about these parts. Then teach them to say no and respect that no. कितने बार होता है पिता कि हमारे घर पे कोई गेस्ट आते हैं एंड हम अपने बच्चे को कहते हैं कि जाओ वो आंटी को या अंकल को एक हग दे दो या थैंक यू बोलो. हग दे के थैंक यू बोलो. अभी नॉट नेसेसरी कि बच्चा फील्स कंफर्टेबल गिविंग दैट हग. सो डू नॉट फोर्स देम टू डू दैट इवन इफ इट इज द ग्रैंडमदर. देयर बॉडी, देयर चॉइस, इवन फॉर हग्स एंड किसेस. आप बच्चे को चॉइस दे सकते हो कि ओके दादी माँ आई है या मासी आई है या फूफा जी आए हैं. आप उन्हें हक करके ग्रीट करोगे, पसंद करोगे, कि आप हाई फाई दोगे या आप हाथ जोड़ के ग्रीट करोगे. गिव देम अ चॉइस एंड रिस्पेक्ट दैट चॉइस. उन्हें ये मैसेज मिलता है कि अगर मैं कोई चीज के लिए ना बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ तो मेरी ना में कोई वैल्यू है. अगर हम सारा टाइम बच्चों को फोर्स करेंगे हर चीज के लिए, देन उन्हें ये मैसेज मिलता है कि उनकी ना की कोई वैल्यू ही नहीं है. तो कल कोई उन्हें टच करेगा अनसेफ तरीके से, वो सोचेंगे कि ना बोल के क्या फायदा है, कोई हमारी सुनता तो है. सो रिस्पेक्ट देयर नो. आप जिसमें उन्हें नहला रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, राइट, तो नहलाते नहलाते या कपड़े चेंज करते टाइम उनसे बात कीजिए, उन्हें बताइए आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि नाउ आई एम वॉशिंग योर प्राइवेट पार्ट्स, या अभी मैं दरवाजा बंद कर रहा हूँ या कर रही हूँ क्योंकि मैं आपके कपड़े चेंज कर रही हूँ और कपड़े चेंज करना प्राइवेट एक्ट है. तो उन्हें बताइए आप क्या कर रहे हैं. टेल देम कि अगर कोई भी उन्हें टच करता है अनसेफ जगह पे, देन दे हैव टू कम एंड टेल मम्मी या डैडी. बताना बहुत जरूरी है. Tell them it is never your fault and we will always believe you and we will protect you. And if I talk about pre-teens, जैसे जब बच्चे 7 साल से 12 साल के बीच में आते हैं तो उनकी बॉडी में चेंजेस आते हैं, right? So like what's a healthy way to talk to pre-teens about changes in their body before puberty actually begins? So that we can prepare so this is them, very, right? yeah, it is very important that we don't wait for the changes to happen before we talk about them. Start talking about them before these changes happen. In fact, puberty तो इतना easy topic है कि आप 9 या 10 साल के, आप 6 और 7 साल के बच्चे के साथ भी puberty में बात कर सकते हैं. For example,
आप उन्हें कह सकते हैं कि ओके, आप अपने, सपोजिंग आपका बेटा है, तो आप बेटे को कह सकते हो कि आप अपनी बॉडी देखो और आप अपने फादर की बॉडी देखो, आप मुझे बताओ इनमें क्या डिफरेंस है। तो बच्चा बोलेगा शायद कि पापा बड़े टॉल हैं, उनके चेहरे पे बाल हैं या छाती पे बाल हैं, उनकी आवाज थोड़ी सी मोटी सी है। बस दिस इज योर टॉक, फर्स्ट टॉक ऑफ प्यूबर्टी। कि जब आप बड़े होते हो, हर बच्चा बड़ा होता है और एक टाइम आता है आपकी लाइफ में बिटवीन 9 to 14 years या 15 years, जब आपके बॉडी में भी ये सारे चेंजेस होते हैं एंड उस टाइम को प्यूबर्टी कहा जाता है। बस ये आपका एक शुरुआत का टॉक हो गया बच्चे के साथ। फिर जैसे वो और थोड़े बड़े होते हैं, उनके और भी इनके बारे में आप और डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। एंड इसमें ना कभी भी जो प्यूबर्टी के टॉक है कॉमन होने चाहिए। मतलब कि अगर आपका बेटा है तो इसका ये मतलब नहीं कि आप उसे वो चेंजेस ना बताएं जो गर्ल्स को होते हैं। दोनों के चेंजेस बताएं, बिकॉज उससे बहुत एम्पैथी डेवलप होती है एंड वो एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं। तो अगर आप बेटे से प्यूबर्टी की बात कर रहे हैं तो बिसाइड्स द फैक्ट कि बॉडी हेयर होएगा, वॉइस चेंज होंगे, इरेक्शंस होंगे, उनसे ये भी बात करें कि गर्ल्स को पीरियड्स होते हैं, ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है, हाउ टू बी सपोर्टिव, हाउ टू बी रिस्पेक्टफुल, ये सारी चीजें बात करनी जरूरी है। अब ये तो सब फिजिकल चेंजेस हो गए, राइट। इमोशनल चेंजेस भी बात करने बहुत जरूरी है, बिकॉज प्यूबर्टी में इमोशनल, सोशल, बिहेवियरल, फिजिकल सारे चेंजेस होते हैं, सेक्सुअल चेंजेस भी होते हैं। तो इमोशनल चेंजेस की मूड स्विंग्स होंगे, हो सकता है आप रूड हो जाओ पेरेंट्स की तरफ, या हो सकता है कि आप आज अभी फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाए आपके लिए, जो फ्रेंड्स बोले दैट इज वर्ड ऑफ गॉड एंड जो पेरेंट्स बोले उसे रिजेक्ट करना है। रिस्क टेकिंग इंक्रीज हो जाती है, बॉडी कॉन्शियसनेस बहुत होता है, पीयर प्रेशर बढ़ जाता है। तो ये सारी बातें भी बताना बहुत बहुत जरूरी है। एक और चीज अर्पिता मैं कहूंगी जो बच्चों को बताना बहुत जरूरी है प्यूबर्टी के टाइम, कि डू नॉट कंपेयर। दूसरे बच्चे के साथ अपने को कभी कंपेयर नहीं करो, बिकॉज हर एक का प्यूबर्टी का टाइम अलग होता है। 9 to 15 में कभी भी प्यूबर्टी आती है, किसी की 9 में चालू हो जाएगी, किसी की 15 तक भी नहीं चालू होगी। सो जिसकी शुरू में जल्दी चालू हो गई वो लंबा हो जाएगा या हो जाएगी, किसी को पीरियड्स चालू हो जाएंगे, ब्रेस्ट डेवलपमेंट चालू हो जाएगी, बॉडी में बाल आने शुरू हो जाएंगे। जरूरी नहीं आपकी प्यूबर्टी भी तभी आए, it may be later. So do not compare and know everybody is different but beautiful. Accept that fact. Right. And I guess छोटे बच्चों को हम ऐसे भी समझा सकते हैं, जो मुझे अभी लगा कि जैसे अगर हमारा बच्चों का जो मिल्क टूथ है वो जब गिरता है, वो भी हर बच्चों का अलग अलग टाइम पे गिरता है, इवन इफ दे आर इन सेम क्लास, और उसका पैटर्न भी सेम नहीं होता है। तो मे बी हाँ, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड एग्जाम्पल जो उन्होंने देखा हुआ है, जो उन्होंने एक्सपीरियंस भी किया हुआ कि हाँ राइट, हमारे टीथ तो अलग अलग टाइम पे टूटे या अलग अलग जगह के टीथ टूटे, तो इस तरह से वी कैन रिलेट, राइट। किसी को, एक बच्चे को छींक आती है, जरूरी नहीं कि आपको भी उसी टाइम छींक आएगी। हाँ राइट। तो हर एक की बॉडी अलग है, अपने टाइम पे वो ग्रो भी होगी। सो प्यूबर्टी अलग होगी, बट उस लिए चिंता मत करो और किसी को चिढ़ाओ मत उसलिए, बिकॉज बच्चों में ये काफी बार देखा जाता है कि वो चिढ़ाते हैं, अरे तुम तो बहुत टिंगू हो, अभी तक तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ी है। या कोई लड़की बहुत फियर करती कि मेरे सारे फ्रेंड्स को पीरियड्स आ गए, मुझे अब तक क्यों नहीं आए हैं। सो आई थिंक ये बता के आप उन्हें थोड़ा सेटल डाउन कर सकते हैं, दे विल बी मोर रिलैक्स्ड। करेक्ट। So now coming to teens and adolescents, teens today have access to everything online, like from porn to misinformation. How can parents become their safe go-to source without sounding preachy? ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये सब पेरेंट्स भी पूछते हैं कि how can we become that go-to source, कि हमारे children turn to us before they turn to their friends or their to the internet. Well, ये करने के लिए हमें अपने अंदर बहुत काम करना पड़ता है. We don't realize it, but we can be very judgmental. And हमारे अंदर ना एक DNA भरा होता है. जिस दिन हम पेरेंट बनते हैं ना, उस दिन एक नया अंदर ऐप चालू हो जाता है हमारे अंदर, which is advice giving. तो हम हर चीज पे एडवाइस देते. एक छोटी सी कुछ चीज भी हुई, अभी एक बच्चा फॉर एग्जाम्पल
कोई पार्क में गया है, राइट, एंड वहां पे कोई नई स्लाइड है, खूब उसने उछल कूद की है, वो आके अपने फ्रेंड को बताएगा कि अरे ये स्लाइड थी, मैंने ना उल्टा स्लाइड किया, मैंने यहाँ से जंप मारा, एंड उसका फ्रेंड बोलेगा अरे वाह क्या मजा आया होगा। यही चीज आके वो पेरेंट्स को बताएंगे इसी तरह से, तो पेरेंट्स बोलेंगे अच्छा बट सुनो तुम गिर भी तो सकते थे, तुम क्यों नहीं केयरफुल रहते हो। नाउ द मैसेज द चाइल्ड इज गेटिंग कि ये सब बातें पेरेंट्स को बतानी नहीं है, क्योंकि जब मैं बताऊंगा तो मुझे लेक्चर मिलेगा और हो सकता है मुझे नेक्स्ट टाइम के लिए परमिशन नहीं मिले। तो ये एक बड़ा कारण है कि टीन्स डू नॉट कम टू अस आस्किंग क्वेश्चंस और शेयरिंग थिंग्स बिकॉज दे फील कि अब एक और लेक्चर मिलेगा। So to be an askable and approachable parent, I think ये बहुत important होता है। A, do not judge a child. अपना चेहरा ना एकदम एक बुद्धा एक्सप्रेशन जैसे काम रखिए, which doesn't give away anything। अंदर बच्चे ने कुछ ऐसा पूछा है कि आप एकदम शॉक हो गए हो या एंग्री हो गए हो, तो भी अपने चेहरे पे वो ना दिखाएं, बिकॉज बच्चा इज लुकिंग एट योर एक्सप्रेशन फर्स्ट, राइट, एंड आपका एक्सप्रेशन उसे बताएगा कि वापस आऊं कि नहीं क्वेश्चन पूछने। और अगर बच्चा आता है, सो इफ यू नो द आंसर गिव द आंसर, इफ यू डोंट नो द आंसर डोंट टेल देम। या बच्चे को वैसे भी आप ऐसे मत बोलें कि अभी तुम बहुत छोटे हो, ये सब बातें तुमको नहीं समझेगी, बड़े हो जाओगे तब बताऊंगा। तुम आपने ऐसा बोला कि वो बच्चा इमीडिएटली इंटरनेट पे जाएगा एंड फाइंड आउट कर लेगा। Right? So if a child has come to you, appreciate that, appreciate the child and give the child an answer. And अगर आपको आंसर नहीं पता है, then ask for time. से मुझे एक दिन दो, let me find this out for you. एक दिन में do whatever you want to do. आप गूगल करें, reach out to us at Untab, कुछ भी करें, find the answer, next day बच्चे के पास जाएं and उन्हें बोले कि आपने जो कल मुझसे पूछा था ना, सुनो इसका आंसर ये है। Now what you've done कि वो धीरे धीरे वो दरवाजा कम्युनिकेशन का खुलते जाएगा। Share with them कि how when you were growing up you wish somebody had spoken to you about all these things। उन्हें बोलो कि मैं कितना चाहता था या चाहती थी कि मुझसे मेरे पेरेंट्स बात करें, मुझे कोई अडल्ट बताए, ये कभी बताया ही नहीं, बट आई वॉन्ट टू बी द वन जो तुमसे ये बातें करें। So I think ये छोटी छोटी चीजें जब आप करेंगे ना, तो बच्चे अपने आप आना शुरू करेंगे। जब आप उन्हें डांटो नहीं कोई भी क्वेश्चन के लिए, जब आप उन्हें ज्यादा लेक्चर मत दो कोई भी चीज के लिए, वो ऑफ कोर्स वो सारी चीजें भी इम्पोर्टेंट है पर हरदम नहीं। So then you will see that kids start opening up. Okay, बहुत ही छोटी सी बात होती है अर्पिता कि अगर एक बच्चा सुबह उठा एंड वो खांस रहा है, तो हम पेरेंट्स का क्या रिएक्शन होता, तुमने कल क्या आइसक्रीम खाई, कोई कुछ ठंडा पिया, इमीडिएटली हम उन्हें ब्लेम करते हैं। हमारा पहला रिस्पॉन्स होता है उन्हें ब्लेम करना। तो उन्हें ये मैसेज मिलते जाता है कि उनके साथ कुछ भी हो, मतलब दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो इसमें काफी बार ये भी होता है कि अनफॉर्चुनेटली अगर किसी बच्चे को अनसेफ टच किसी ने गलत तरह से छुआ है, तो बच्चे आके कंप्लेन नहीं करते हैं काफी बार, क्योंकि उन्हें लगता है अगर हम बताएंगे तो हमें बोला जाएगा कि तुमने कुछ किया होगा तब तुम्हारे साथ। तो ये छोटी छोटी चीजों का अगर हम ध्यान रखें तो we'll see that the kids will open up, and उन्हें भी कोई चाहिए, उन्हें चाहिए वो घर पे सपोर्ट, they're looking for that, right, they're looking for that, and I guess वही है सेम चीज। अगर हम अपने पेरेंट्स को किसी उनके बिहेवियर के लिए ब्लेम करते हैं, तो वी विल लाइक कि उनका बचपन भी ऐसा था, उन्होंने भी यही सीखा, हमने भी यही सीखा, बट नाउ हमारी जनरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वी शुड ब्रेक दैट चेन। हमें वो चेन ब्रेक करके और हमें वो चीजें नॉर्मल करनी ही पड़ेंगी, अदरवाइज फिर ये चलता ही रहेगा। और पहले के जमाने में शायद इतना एक्सपोजर नहीं था, तो ऑप्शंस नहीं थे, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं थे। आजकल तो हर जगह ओटीटी चैनल पे इंफॉर्मेशन है, इंटरनेट है, अनफॉर्चुनेटली पूरा जनरेशन पॉर्न देख के बड़ा हो रहा है, तो वो ऑप्शन है उनके पास। तो बहुत ज्यादा एक्सपोजर है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन सही ऑप्शंस, एज अप्रोप्रिएट ऑप्शंस, पॉजिटिव ऑप्शंस सिर्फ पेरेंट्स के पास है, स्कूल्स के पास है, एक्सपर्ट्स के पास है। तो ये 3 जनों को डेफिनेटली द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होना चाहिए बच्चों का।
Correct. So, also, according to you, what is the role of sex education in reducing toxic masculinity, slut shaming, or gender-based bullying in middle and high schools, basically? क्योंकि Yeah. इस एज में बहुत ज्यादा हो रही है ये चीजें, हमने नोटिस करी हैं, सोसाइटी में भी पता चलता है, तो स्कूल में भी ऑब्वियसली हो ही रहा होगा ये सब. करेक्ट. सी, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी जो है वो जनरेशन से चली आ रही है, राइट? हाँ, कहने को तो बहुत छोटे से स्टेटमेंट्स हैं कि बॉयज डोंट क्राई, लेकिन बहुत बड़ा इसके पीछे एक कंडीशनिंग है. मतलब व्हेन यू से बॉयज डोंट क्राई, कि मर्द रोते नहीं है, मर्द को दर्द नहीं होता है, जो हमारे स्टेटमेंट्स हैं, आप बॉयज को ये मैसेज दे रहे हो कि आपको इमोशंस दिखाना नहीं है, आपको वीकनेस दिखानी नहीं है. ये तो कितना बड़ा प्रेशर है उनके पीछे, राइट? एंड अगर कोई बॉय रो दे तो उसे कहा जाता है तुम क्या लड़की हो. अगर किसी बच्चे को, कोई बॉय को वो जो मेलों में वो फेरिस व्हील होता है, जो उसमें, या कोई थीम पार्क में रोलर कोस्टर्स है, उसमें बैठने में डर लगता है तो हंसते हैं, अरे तुम लड़की हो क्या, विच इज सो रॉन्ग. इमोशंस तो बॉयज एंड गर्ल्स को सेम होते हैं, राइट? तो अगर हम ये सिखाना चालू करें कि it is not a matter of whether you are a boy or girl, it is very important to show your emotions, and strength or weakness, both are emotions and you should show both of them. कंसेंट के बारे में दोनों को सिखाएं कि कंसेंट, जो रियल मेन होते हैं, दे आस्क फॉर कंसेंट. हमारे बॉलीवुड में कैसे भी ग्रोन अप विद द कल्चर की द हीरोज डोंट आस्क, दे डिमांड. करेक्ट. हीरोइन की अच्छी लगी लड़की, उसके पीछे जाओ, उसका हाथ खींचो, गाना गाओ, वो छुड़ाएगी, वापस से खींचो, और वो she'll fall in love with you. So वो वाला साइकिल भी ब्रेक करना है कि no, real men ask and real women can say no, and it is cool to ask. and फिर ये जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं कि अगर लड़का बहुत लड़कियों के साथ घूमता है तो वो प्लेयर है, एंड अगर लड़की लड़कों के साथ घूमती है तो शी इज अ स्लट. तो ये सेम बिहेवियर के लिए जो हमने ये दो अलग अलग नेगेटिव एंड पॉजिटिव वर्ड बना के रखे, वो हमें तोड़ना चाहिए. इनफैक्ट कल रात को आई वाज सीइंग दिस वन मूवी, एक नेटफ्लिक्स पे मूवी है, आप जैसा कोई, which talks about this exact same thing, कि how men and women are judged for the same thing. दोनों same चीज कर रहे हो, लेकिन how it's accepted in men and how it's not accepted in men. और बड़े अच्छे से उन्होंने ये बात कही है वो मूवी में. Then teach boys, ये जो एक और लाइन हमारी बहुत ही गलत लाइन है कि boys will be boys. हम कहते हैं कि बच्चे जब छोटे होते हैं तो बॉयज जो होते हैं बहुत नॉटी होते हैं, बहुत भागा दौड़ी करते हैं, गर्ल्स जो होती है कामली खेलती है. इट्स नॉट नेसेसरी. I've seen boys sitting quietly and I've seen लड़कियां जो बहुत उधम करती है, and that is okay. तो जब हम ये कहते हैं ना कि boys will be boys, तो उन्होंने जो भी किया हम उसे माफ कर देते हैं. किसी ने कुछ चीज तोड़ी, भागा दौड़ी करके, अरे लड़का है, लड़का तो ऐसे ही करेगा, या किसी ने किसी को छेड़ दिया, अरे बट बॉयज विल बी बॉयज. किसी लड़की के साथ खूब स्टेयर किया, उसके साथ बॉयज विल बी बॉयज, हम उसे सब चीज माफ कर देते हैं ये एक स्टेटमेंट बोल के. We have to teach the boys, they need to control their feelings also. It is not कि you're a boy and you're, girls को हम कहते हैं कि छोटे कपड़े मत पहनो. If you wear clothes like that, boys will not be able to control themselves. Why? Let's teach our boys to control themselves. Right? Show them what healthy relationships look like. Show how two people who support each other's dreams, who respect each other, let's show them better role models, whether it is through our shows, whether it is through our movies, whether it is behavior of parents with each other at home. So, मीडिया में तो वो लोग बहुत चीजें देखेंगे, लेकिन घर पे जो देखेंगे, as parents you can role model equal behavior and non-sexist behavior at home. Very, very true.
क्योंकि बच्चे सबसे ज्यादा घर पे ही सीखते हैं, सबसे ज्यादा वो घर पे ही होते हैं Yeah. 24/7, right? So also as you are telling कि हमने अच्छे रोल मॉडल्स दिखाए क्योंकि कंसेंट बहुत जरूरी है. So consent, again, consent is a big buzzword, right? So but what does real consent education looks like for teenagers? Like जैसे अभी आपने बताया कि हम उनको रोल मॉडल्स दिखाएं, बट हमारे पास बहुत ज्यादा रोल मॉडल्स है नहीं, हम घर पे कर सकते हैं. तो इट्स जस्ट देयर पेरेंट्स सपोज, तो वो तो बस एक कपल को ऐसे ही देख रहे हैं, करेक्ट? तो हम और ज्यादा क्या कर सकते हैं इसके लिए? So, अर्पिता, जब हम कंसेंट की बात करते हैं, हम यूजुअली कंसेंट को सेक्सुअल कंसेंट की बात करते हैं, पर एक्चुअली कंसेंट छुटपन से शुरू होनी चाहिए. आप नॉक करके किसी के रूम में जाए, मे आई कम इन टू योर रूम, अगर वो हाँ बोले दैट इज कंसेंट, ना बोले दैट इज नॉट कंसेंटिंग, तो आप ना जाए. Can I borrow your pen? Are you okay with this plan? Can I take your picture? Can I put it on the social media? ये सब consent ही तो है. अगर हम इसे एक डेली चीज के लिए सोचे कि ये एक मसल है जिसे हमें रोज एक्सरसाइज करना है, सो कंसेंट इज जस्ट लाइक दैट. तो अंडरस्टैंडिंग कि कंसेंट छोटे बच्चों से शुरू कीजिए, वहां से शुरू कीजिए, तो आगे जाके बहुत आसानी होगी. सोशल कंसेंट से सेक्सुअल कंसेंट सिखाने में बहुत आसानी होगी. जब हम टीनेजर्स की बात करते हैं फॉर सेक्सुअल कंसेंट, तो टीच देम अबाउट एंथुसियास्टिक कंसेंट. मतलब हमने सुना है कि, हमने मूवीज में देखा है कि नो मीन्स नो. हम सोचते हैं बस कंसेंट उतना ही सीमित है. कंसेंट एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला टर्म है. अगर किसी ने बहुत हिचकिचा के हाँ कहा, देन अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ कंसेंट वो कंसेंट नहीं है, उसमें हेजिटेशन है. साइलेंस इज नॉट कंसेंट. किसी ने कुछ नहीं कहा, आप आगे बढ़ रहे हो लेकिन वो कुछ नहीं कह रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि कंसेंट है. कंसेंट मीन्स अ वर्बल, क्लियर, एंथुसियास्टिक यस. इफ समबडी इज ड्रंक, थोड़े नशे में है, उनका हाँ नहीं माना जाता है. अगर कोई अंडर 18 है एंड उन्होंने हाँ भी कहा है, तो दैट कंसेंट इज नॉट कंसेंट. So, how should parents respond when their teens ask about topics like masturbation, periods, birth control, or even gender identity? I always tell parents, अर्पिता, कि अगर आपका बच्चा आपके पास आके ये क्वेश्चंस पूछता है, तो be very grateful. Join your hands. जो भी भगवान को आप मानते हो, उन्हें एक बिग थैंक यू भेजिए कि आपका बच्चा आपके पास आया, because it's a big thing. And हो सकता है वो questions might surprise you or shock you. So take a deep breath. The fact that they're coming to you means they trust you. First thing is appreciate them, that I'm very glad you have come to me and asked me this. That should be your first response. Then you give them an answer. And like I was saying, pehle ki if you know the answer, give them the answer. If you're not sure ki bachche ka age, kam age hai, I don't know whether I want to give them the full information. If you don't have the right words, then ask for time. Tell them, abhi mere paas wo sahi shabd nahi hai. Give me one day, I'll come back to you, and then come back and give them the answer. अब जब हम ये टॉपिक्स के बारे में बच्चे से बात करते हैं, whether masturbation हो गया या जेंडर आइडेंटिटी हो गया, always give them the facts. पहले उन्हें फैक्ट्स बताएं कि ये होता क्या है, masturbation होता क्या है. कोई रिलीजन मानती है कि ये सिन है, लेकिन हम अगर रिलीजन को थोड़ा सा दूर रखें, हम साइंस के बारे में बात करें, तो साइंस कहती है कि ये सेफ वे है टू रिलीज योर सेक्सुअल एनर्जी. उन्हें डूज एंड डोंट्स बताएं मैस्टरबेशन के बारे में. उन्हें अगर कुछ लॉज हो कोई भी टॉपिक के बारे में, तो उसके लॉज बताएं, और फिर आप अपने वैल्यूज ऐड करें कि जो भी आपके वैल्यूज है, अगर आप वैल्यूज बताना चाहते हैं, तो बच्चे को एक पूरा इंफॉर्मेशन मिलता है कि साइंटिफिक इंफॉर्मेशन क्या है, लॉ क्या है, इसके डूज एंड प्रोस क्या है, कॉन्स क्या है, और मेरे पेरेंट्स का क्या बिलीफ है.
और फिर उन्हें बोलो कि अभी मैंने तुम्हें पूरी पिक्चर बता दी है, नाउ इट इज अप टू यू कि तुम्हें क्या करना है. डू नॉट फोर्स योर वैल्यूज, बिकॉज जहां वो फोर्स होता है ना वैल्यूज पे, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बच्चा आता है और सेक्स के बारे में बात करता है कि व्हाट इज द राइट एज टू हैव सेक्स, अगर हमने अपना चालू कर दिया उन्हें लेक्चर देना कि ये कोई उम्र नहीं है, ये ठीक नहीं होता है, ऐसे अभी पढ़ाई में कंसंट्रेट करो, यू नेवर नो वो बच्चा क्या करेगा. नॉट नेसेसरी कि बच्चा मानेगा, लेकिन अगर हम उन्हें बताएं कि सेक्स करने एज, लीगल एज क्या है, और अर्ली एज में करने से क्या प्रिकॉशंस हैं, क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, और हमारे बिलीव्स क्या है, तो हम उन्हें पूरा पिक्चर दे दो एंड देन लेट देम टेक अ डिसीजन. So also many parents say we didn't get this education and we turned out fine. How do you respond to that mindset? Did we really turn out fine? हमें लगता है we turned out fine, but actually अगर हम देखें जो भी हमारी कंडीशनिंग है, अगर आज women are still today so ashamed of their periods कि हम सैनिटरी पैड को छुपा के लेके जाते हैं, वॉशरूम में भी जाना हो, मेडिकल शॉप में जाना है, यू हैव टू बाय अ सैनिटरी नैपकिन, तो रुकते हैं कि जब आजू बाजू वाले लोग हट जाएं तब उसे बोलेंगे सैनिटरी नैपकिन, या वो भी एक ब्लैक पॉलिथीन में या पेपर में बांध के सैनिटरी नैपकिन देंगे. तो ये जो शर्म है इवन फॉर समथिंग एज बेसिक एज सैनिटरी नैपकिन, ये कहाँ से आई है? ये आई है क्योंकि पहले हम इस बारे में खुल के बात ही नहीं हुई है. तो हम कैसे कह सकते हैं कि we did fine, our kids will do fine. बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिसका चाइल्डहुड का इम्पैक्ट बड़ेपन में भी होता है. So also again coming to the last question, how can schools and parents collaborate, not clash, to ensure children receive a unified, safe and affirming approach to sex education? यार भी that's a very nice question, क्योंकि हम जब स्कूल्स में जाते हैं तो हम ये दोनों का टग ऑफ वॉर देखते हैं कि कभी schools want to have these sessions लेकिन पेरेंट्स ऑब्जेक्ट करते हैं. काफी सारे पेरेंट्स ओपन होते हैं, लेकिन एक ग्रुप ऑफ पेरेंट होएगा जो बिल्कुल अपोज करेंगे कि नहीं, ये क्या आप सिखा रहे हो हमारे बच्चों को. सो आई थिंक द पेरेंट्स एंड स्कूल्स हैव टू कम टुगेदर. सेक्स एड ना एक 3-legged स्टूल है. स्टूल में कैसे 3 क्या कहते हैं, लेग्स होते हैं. हाँ, तो तभी बैलेंस प्रॉपर होता है, राइट? तो एक लेग है कि बच्चे को एजुकेट करो, दूसरा लेग है पेरेंट को एजुकेट करो, एंड तीसरा है टीचर्स को एजुकेट करो. तभी ही ये कंट्रोल रहेगा. एंड इतने ब्यूटिफुल आप ये इंफॉर्मेशन ब्यूटिफुली बच्चों को दे पाओगे, उनका बिहेवियर चेंज होएगा, एटीट्यूड चेंज होएगा. सो स्कूल्स कैन टीच फैक्ट्स एंड पेरेंट्स कैन टीच वैल्यूज. एंड फॉर सम पेरेंट्स, जैसे आप बोल रहे हो कि हमें घर पे बात स्टार्ट करनी चाहिए, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैंने ये पॉडकास्ट भी मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ. पर हम सीखे कहाँ से? अब आप पेरेंट्स के लिए बताओ कि वेयर कैन वी लर्न ऑल दिस थिंग्स? वेल, एक तो हमारे अनटैबू के पेरेंट वर्कशॉप्स होते हैं, तो आप आ सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो. अनटैबू को आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो. एक्चुअली अनटैबू इंस्टाग्राम पे मैं बहुत सारे वीडियोस करती हूँ पेरेंट्स के लिए. पूरा इंस्टाग्राम मेरा सिर्फ पेरेंट्स के लिए है कि कैसे आप डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट्स को आसान लैंग्वेज में, एज अप्रोप्रिएट लैंग्वेज में बच्चों को से बात कर सको. तो जैसे आजकल बहुत बच्चे, छोटे बच्चे, 3rd-4th स्टैंडर्ड के बच्चे पूछते हैं व्हाट इज द मिडिल फिंगर. ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है. व्हाट डज द एफ वर्ड मीन, 69 क्या होता है, सेक्स क्या होता है, बच्चे कैसे पैदा होते हैं. ये सारे क्वेश्चंस बच्चे बहुत पूछते हैं. अब हम उन्हें पूरा सेक्सुअल इंफॉर्मेशन तो नहीं दे सकते हैं, तो नॉन सेक्सुअल मैनर में हम बच्चों के लैंग्वेज में कैसे उन्हें ये टर्म समझा सकते हैं, सो दैट दे कीप कमिंग बैक टू अस एंड इंटरनेट पे ना जाए. तो ये इस तरह के छोटे छोटे वीडियोस में बहुत करती हूँ अनटैबू के इंस्टाग्राम पे. तो वो एक जगह है जहाँ पेरेंट्स जाके सीख सकते हैं. हमारे वर्कशॉप्स हैं जहाँ सीख सकते हैं, और पेरेंट्स भी खुद बुक्स लेके पढ़ सकते हैं.
बच्चों की बुक्स होते हैं ऑन दीज टॉपिक्स, लेकिन पेरेंट्स भी पढ़ेंगे तो उनका भी नॉलेज बढ़ेगा, बिकॉज हमारे साथ किसी ने बचपन में बात ही नहीं की। तो आज शादी होने के बाद भी, बच्चे होने के बाद भी, नॉट नेसेसरी कि हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन हाँ, है, राइट राइट। राइट? तो आई थिंक ये एक माइंड से निकाल दो कि आप बड़े हो, आपको सब आना चाहिए। इट्स नॉट नेसेसरी। So can you like give me 2 to 3 safe websites or book suggestions for parents? वेल, बुक तो बहुत सारी है, लेकिन आई विल गिव माई बुक एज अ रिसोर्स, बिकॉज Mm-hmm. खुद की तारीफ नहीं कर रही हूँ, लेकिन बहुत ही अच्छी बुक है। इट गॉट द बेस्ट चिल्ड्रंस बुक अवार्ड 2019 में। उस बुक का नाम है हाउ आई गॉट माई बेली बटन। एंड बड़े आसान तरीके से स्टोरी फॉर्मेट में पूरा प्यूबर्टी के बारे में समझाया है। लास्ट चैप्टर में बहुत थोड़े से में और छोटे बच्चों की लैंग्वेज में ये भी बताया है कि बच्चे कैसे पैदा होते हैं। सो दिस इज अ बुक आप पेरेंट्स भी पढ़ सकते हो, बच्चों को भी पढ़ा सकते हो और बच्चों के साथ भी पढ़ सकते हो। तो ये एक डेफिनेटली बुक है। एक ओनली फॉर गर्ल्स बुक है, ओनली फॉर बॉयज बुक है, किसी और राइटर की है, पर वो भी प्यूबर्टी के ऊपर है। सो एंड अगेन इंस्टाग्राम पे बहुत वीडियोस आते हैं इस चीज के, सेक्स एड के, तो उन लोगों को फॉलो कीजिए, पढ़िए। एंड चैट जीपीटी के थ्रू भी आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो, वहां से भी आपको काफी अच्छे आंसर्स मिल जाएंगे। तो ऑप्शंस बहुत सारे हैं, एज लॉन्ग एज आपने एक बार मन बना दिया कि मैं अपने आप को एजुकेट करूंगी और मैं अपने बच्चे के हर सवाल का जवाब दूंगी। तो आपने एक बार ये मन ठान लिया तो आप फिर फिगर आउट कर ही लोगे कि मैं कैसे ये करूंगा। तो थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा कॉन्वर्सेशन था एंड आई होप ये हर पेरेंट्स तक पहुंचे। और वो आई एम श्योर 80% ऑफ द पेरेंट को नहीं पता होगा कि कैसे आंसर करना है। आई एम श्योर दे विल रीच आउट टू अनटैबू, दे आर गोइंग टू रीड योर बुक एंड अ लॉट ऑफ वेबसाइट व्हिच यू हैव सजेस्टेड। सो थैंक्स वंस अगेन फॉर बीइंग हियर। थैंक यू सो मच अर्पिता, थैंक यू वेरी मच। Okay, so that was an eye-opening conversation. And if there's one thing we are taking away today, it's this: sex education isn't one-time talk. It's an ongoing conversation that starts early, grows with the child, and is rooted in trust and respect. A huge thank you to Anju Kish from Antaboo for sharing their wisdom and tools to help us raise confident, consent-aware kids. If you loved today's episode, don't forget to follow Open Minds Podcast with Arpita for more unfiltered conversation. And if you think someone in your circle needs to hear this, share it forward. So until next time, keep your minds open and your conversations real. Bye.